અમદાવાદથી લંડનના ગેટવિક જઈ રહેલી એર ઇન્ડિયાનું બોઈંગ 787 ડ્રીમલાઇનર વિમાન AI-171 ગુરુવારે ટેક ઓફ કર્યા પછી તુરત જ ક્રેશ થઈ ગયું હતું. આ ફ્લાઇટમાં કુલ 242 લોકો સવાર હતા, જેમાં 230 મુસાફરો અને 12 ક્રૂ સભ્યોનો સમાવેશ થાય છે. ગુજરાતના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી પણ આ વિમાનમાં સવાર હતા. રડાર ડેટા અનુસાર વિમાને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પરથી બપોરે 1:39 વાગે ઉડાન ભરી હતી, પરંતુ સમુદ્ર સપાટીથી 625 ફૂટની ઊંચાઈ પહોંચ્યા પછી તેમાં ટેકનિકલ ખામી સર્જાઈ અને એર ટ્રાફિક કંટ્રોલ સાથેનો સંપર્ક પણ તૂટી ગયો હતો. વિમાન ટેક ઓફ કર્યાની થોડી વાર પછી જ ક્રેશ થયું અને પહેલા મેઘાણીનગરમાં બીજે મેડિકલ કોલેજના મેસ બિલ્ડિંગ સાથે અથડાયું અને પછી અતુલ્યમ હોસ્ટેલ સાથે અથડાયું હતું. આ કારણે વિમાન આગના ગોળામાં ફેરવાઈ ગયું. ચારે બાજુ ધુમાડા અને કાટમાળ ફેલાયો હતો. અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટનામાં 265 લોકોના મોત થયા છે. અમદાવાદ પોલીસે કહ્યું કે વિમાન દુર્ઘટના બાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં 265 મૃતદેહ લાવવામાં આવ્યા હતા. મૃતકોમાં હોસ્પિટલમાં રહેતા લોકો પણ છે. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે કહ્યું કે ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકારના તમામ વિભાગો સાથે મળીને રાહત અને બચાવ કાર્યમાં રોકાયેલા છે. દેશ વિદેશના કુલ 230 મુસાફરો 12 ક્રૂ સભ્યો આ વિમાનમાં હતા. માહિતી મળી છે કે આ મુસાફરોમાંથી એક બચી ગયો છે. તેમણે મળ્યો છે ડીએનએ ટેસ્ટ અને ઓળખ પછી જ મૃત્યાંક સત્તાવાર રીતે કહી શકાય છે. ડીએનએના નમૂના લેવાની પ્રક્રિયા પણ ટૂંક સમયમાં પૂર્ણ થશે. 1000થી વધુ ડીએનએ ટેસ્ટ કરવા પડશે અને તે બધા જ ગુજરાતમાં કરવામાં આવશે. ટાટા સન્સના ચેરમેન એન ચંદ્રશેખરે વિમાન દુર્ઘટના પર ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરી હતી. તેમણે કહ્યું કે આ દુઃખદ ઘટનાથી આપણે બધા દુઃખી છીએ. તેમણે જાહેરાત કરી કે ટાટા ગ્રુપ આ દુર્ઘટનામાં જીવ ગુમાવનારા દરેક વ્યક્તિના પરિવારને 1 કરોડ રૂપિયાની આર્થિક સહાય આપશે. એ ઉપરાંત કંપની તમામ ઘાયલોની સારવારનો સંપૂર્ણ ખર્ચ પણ ઉઠાવશે. તેમને જરૂરી તમામ સંભાળ અને સહાય પૂરી પાડવામાં આવશે. અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલના તંત્રે કહ્યું કે વિમાન દુર્ઘટનામાં જે પ્રવાસી હદભાગ્યોના મૃતદેહ અહીં છે, તેમના ડીએનએ મેચ થયા બાદ સગાઓને સોંપવામાં આવશે. હાલ ડીએનએ લેવાની પ્રક્રિયા શરૂ છે. સેમ્પલ લીધા બાદ મેચિંગ લેબ માટે મોકલવામાં આવશે. જોકે ઘટનાની ગંભીરતા અને મૃતદેહની સ્થિતિ જોતા સમગ્ર ડીએનએ મેચિંગ પ્રક્રિયામાં ઓછા 3 દિવસથી વધુનો સમય લાગી શકે છે. મૃતકોના સજ્જનો આ અંગેની વધુ માહિતી કંટ્રોલ રૂમના ફોન નંબરથી મેળવી માટે હેલ્પલાઇન નંબર પણ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ સાઇટની મુલાકાત લીધી બાદ વડાપ્રધાન મોદીએ એક્સ પર પોસ્ટ કરતા લખ્યું કે દુર્ઘટનાથી બધાને આઘાત લાગ્યો અને આટલા લોકોને જીવ ગુમાવ્યા બાદ હું આ ઘટનાને શબ્દોમાં વખોડી અને વર્ણવી શકું તેમ નથી. તમામ શોકગ્રસ્ત પરિવારો સાથે મારી સંવેદના. વડાપ્રધાન મોદીએ અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટનાથી સ્થળ મુલાકાત લીધી અને ત્યારબાદ સિવિલમાં પીડિતોના પરિવારજનો અને ઈજાગ્રસ્તોની મુલાકાત કરીને તેમણે સાંત્વના પણ આપી હતી. ત્યારબાદ તેમણે ગુસ્સેલમાં મુખ્યમંત્રી સહિત ગુજરાત સરકારના મોટા અધિકારીઓ સાથે આ દુર્ઘટના અંગે વિગતો પણ મેળવી હતી. कल एक्चुअली मैं वापस लंदन जा रही थी और मेरी फ़्लाइट का टाइम था 1:10 का, तो हमें पहुंचते थोड़ा 12:20 हो चुकी थी और 12:10 को एयर इंडिया वालों ने चेक इन और सब कुछ करना बंद कर दिया था. मैं वहाँ पे चेक इन के गेट पे पहुँचने के बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि अभी 10 मिनट ही थोड़ा लेट हुआ है, तो मुझे जाने दो, जो भी इमिग्रेशन और वो होगा मैं फटाफट से सब क्लियर कर दूंगी. लेकिन उन्होंने और वो उनकी सीनियर स्टाफ भी आए थे, उन सब से मैंने रिक्वेस्ट की, लेकिन वो तीनों जन ने मुझे वापस ही भेज दिया कि नहीं मैडम, अभी 10 मिनट की आपकी लेट की वजह से हम लोग को और 15 मिनट लेट हो सकता है, तो फिर इसलिए मुझे रिटर्न होना पड़ा था. आपका लेट होने का कारण क्या था एयरपोर्ट पहुंचने? लेट होने का रीज़न तो यही था कि अहमदाबाद का थोड़ा ट्रैफिक, हम लोग ये सिटी एरिया में थोड़ा एंटर हो चुके थे, तो उस वजह से थोड़ा हमको लेट हुआ था. जब आपको पता चला है कि प्लेन क्रैश हुआ तब आप कहाँ पे थे और कैसे फील हुआ है? जब पता चला तब हम ऑलमोस्ट एयरपोर्ट से तो घर के लिए निकल चुके थे और हम लोग गाड़ी में ही थे, और तभी हमने न्यूज़ देखा कि ऐसा प्लेन क्रैश हुआ है. और एट द टाइम आई वॉज फीलिंग टोटली नम एंड एक तरह से अच्छा, मैं अपने भगवान का थोड़ा, माता जी का और सब शुक्रिया कर रही थी कि मैं बच गई. लेकिन दूसरी साइड ये भी था कि ये जो इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही थोड़ा
टेरिफाइड। की इंडस्ट्री में बिजनेस करता हूँ एयरलाइंस में। मेरा पीछे यहाँ 200 मीटर पहले ऑफिस है, रिया एयर कार्गो एक्सप्रेस। यहाँ पे जो ऑफिस से बाहर निकला तो मैंने देखा कि आवाज, जोर से आवाज आया विंग्स का, फिर पूरा धुआं भर गया। लोग यहाँ से भगदड़ मची। उसके बाद आके ये देख रहे थे ये हादसा की स्थिति। आने के बाद देखा कि पूरा मलबा बिखरा हुआ, आग लगी है, पूरा धुआं गुबारा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ पा रहा था क्या है। उसके बाद पता चला कि ये विंग्स गिरा हुआ है, फ्लाइट वो किया, और फिर प्रशासन ने चारों तरफ से घेर लिया। रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, उसमें डॉक्टर रहते हैं, जो सिविल नहीं वो सरकारी बना के, हाँ रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जो सरकारी बना रखा है। ये जो रहते हैं लोग, वो दोनों बिल्डिंग में लोग रहते हैं। बहुत दुखद है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। भगवान सभी की आत्मा को शांति दे। गुजरात के सभी तंत्र यहाँ लगे हुए हैं उनकी व्यवस्था में, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ इस समय बोलने की स्थिति नहीं है। सर, ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग था क्या जहाँ पे प्लेन गिरा? मुझे तो बहुत ज़्यादा इसके विषय में जानकारी नहीं है, लेकिन इसको देख करके ऐसा लगता है रेसिडेंट ही होगा। और मैंने बहुत ही गंभीर, बहुत दुखद घटना हुई है। मैं यहीं मेरे ऑफिस में बैठी थी, जैसा धड़ाका हुआ मैं वहाँ ऑफिस से वहाँ गई। बहुत बड़ा प्लेन क्रैश हुआ था, तो बहुत धुआं और आग लगी थी। जो डॉक्टर्स के फ्लैट थे उनको बहुत डैमेज हुए हैं, और उसमें से कितने डॉक्टरों को हमने निकाला है, लोकल कार्यकर्ता और सब मिलके। बाद में जो प्लेन में से निकाले हैं वो लोग भी बहुत बड़ी दुखद बहुत कितने लोगों की मौत, कुछ अभी कोई अंदाज़ा नहीं लग रहा है। ये आज रोज जो दुर्घटना हुई है उसमें मेरी बहन थी और वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए नडियाद आई हुई थी, और आज उसकी फ़्लाइट थी, रिटर्न था, तो मैं उसको ड्रॉप करने गया था। और जैसे ही मैं वापस आया मुझे ये न्यूज़ मिले कि ये फ़्लाइट जो है वो क्रैश हो चुकी है। तो हम सब परिवारजन मिल के वहाँ पे गए, और वहाँ पे सिचुएशन बहुत ही अलग था, बहुत ही पैनिक था वहाँ पे। और आपकी जो बहन है कितने साल से लंदन में रह रही थी? परिवार में कौन कौन है आपकी सिस्टर? मेरी बहन वहाँ लंदन में 15 साल से रह रही है, और वहाँ पे उनके हस्बैंड हैं और 3 बच्चे हैं। उसमें एक बेटा बड़ा है और दूसरे जो 2 हैं वो ट्विंस है, छोटे हैं वो। और उनकी उम्र बड़े बेटे की 13 साल है, और जो छोटे हैं ट्विंस हैं उनकी 7 साल है। आपकी लागणी क्या? आपकी बात हुई कि लास्ट बात हुई होगी बहन से? लास्ट बात मैं खुद उसको ड्रॉप करने के लिए गया था, और उसका मेडिकल कंडीशन था, तो मैंने उसको अपना ये जो पैलेट होता है वो ला के दिया, उसको ट्रॉली ला के दिया, और उसमें उसको बैग सब रख के दिया। और आखिर में मैंने उससे हक किया और उसे कहा कि वहाँ पे जाके आराम करना, तो रिकवरी जल्दी होगी, और कोई चिंता मत करना। आपके दोनों से बात हुई? नहीं, अभी बात नहीं हुई है, पर वो वहाँ से निकल चुके हैं तीनों बच्चों को लेके, और कल सुबह वो यहाँ पे आ जाएंगे। डीएनए का सैंपल मेरा लिया गया है, तो और उन्होंने बताया है कि इसका रिपोर्ट 72 घंटे के बाद आएगा। और वो लोग उन्होंने बोला है कि यहाँ पे जो है कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, उन पे कॉल करना है और कंफर्म करना है कि रिपोर्ट आ चुके हैं। घटना घटी उसमें जो जिनकी डेथ हुई उसमें मेरी एक ननंद भी थी, जिनका नाम रूपल पिनल कुमार पटेल था। वैसे तो वो लंदन में रहते हैं, लेकिन वो अपनी हेल्थ की इश्यू की वजह से यहाँ पर आई हुई थी, और कुछ दिन यहाँ पर रुकने के लिए भी आई थी, अपने पीहर में रहने के लिए। क्या कहेंगे आप? एक्चुअली क्या बात हुई थी? बाद में तो वो जब तक यहाँ रही तब तक उन्होंने अलग अलग खाना बना के खिलाया। फिर उनके बालों में मैंने तेल भी डाल के दिया। उनको कुछ प्रॉब्लम थी, वो जहाँ दवाई नहीं लगा सकती थी वहाँ मैंने दवाई भी लगा के दी, उनका ख्याल रखा। और जितने भी दिन रही हंसी खुशी से दिन बीते। बहुत सारे रिलेटिव्स को उन्होंने यहाँ पर इकट्ठा किया, जो काफी दिन से वो मिल नहीं पाई थी, जिनको उन सबको वो मिली। 3 दिन रही थी यहाँ पर। अतिशय करुण અને ન કલ્પી શકાય એવા દુઃખદ સમાચાર મળ્યા. અમદાવાદથી લંડન જઈ રહેલું વિમાન એ ટેક ઓફ થયા પછી, એટલે કે રનવે ઉપરથી ઉડ્યા પછી માત્ર 2 જ મિનિટમાં તૂટી પડ્યું. અને જ્યાં તૂટી પડ્યું ત્યાં રહેતા હતા લોકો, અને રેસિડેન્સ ડોક્ટર્સની હોસ્ટેલ પણ આવેલી છે. અનેક લોકોને પોતાનો જીવ ગુમાવવાનો વારો આવ્યો. એવા સમાચારોથી ખૂબ વ્યથિત છું. કોંગ્રેસ પક્ષના એક કાર્યકર્તાને
ઘટનાના સમાચાર મળતાની સાથે વિનંતી કરી હતી કે જ્યાં લોહી આપવાની જરૂર પડે બ્લડ ડોનેશન કરવાનું, પ્રશાસનને જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં મદદરૂપ બનવાનું. અને ફરી અપીલ કરું છું કે તમામ જગ્યાએ જ્યાં મદદરૂપ થઈ શકાય ત્યાં બધા જ મદદરૂપ બને. વિસાવદર અને કડીની વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણીઓ ચાલી રહી છે. અમારી અનેક જનસભાઓ, ઉમેદવારોના કાર્યક્રમો, રેલીઓ, સ્વાગત સમારોહો આ બધું જ રાખેલું હતું. એ બધું જ આજના દિવસ માટે રદ કરવાની ઘોષણા કરું છું. સંપૂર્ણપણે શોકગ્રસ્ત પરિવારોની સાથે સમગ્ર કોંગ્રેસ પાર્ટી એમના દુઃખમાં સહભાગી છે. પ્રશાસનને જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં એક એક કોંગ્રેસી કાર્યકર્તા મદદરૂપ બનશે. અને આજના કડી અને વિસાવદરના તમામ કાર્યક્રમો રદ કરીને જે મૃતકો છે એમની પ્રાર્થનામાં, એમના આત્માની શાંતિ માટે અને પરિવારને દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ મળે એ માટે ઈશ્વરની પ્રાર્થનામાં આપણે સૌ સાથે મળીને જોડાઈએ. જે પ્લેન તૂટી પડ્યું છે ત્યાં રેસિડેન્સ ડોક્ટર્સની હોસ્ટેલ હોવાના કારણે ત્યાં પણ જે નુકસાન થયું છે, ત્યાં પણ લોકોને તકલીફો આવી છે. સાચો મૃત્યુઆંક તો હવે આવશે, પરંતુ એ સૌ પરિવારોના દુઃખમાં સહભાગી થાઉં છું. ઈશ્વર દુઃખને સહન કરવાની શક્તિ અર્પે અને મૃતકોને श्रद्धा सुमन समर्पित करूँ। आज दोपहर को एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI 171 दुर्घटनाग्रस्त हुई और कई पैसेंजर इसके अंदर हताहत होने की संभावनाएं हैं। इस घटना से पूरा देश क्षुब्ध है और पूरा देश एक साथ पूर्ण संवेदनाओं के साथ ये जो दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में पैसेंजर हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के साथ खड़ा है। सबसे पहले मैं भारत सरकार, गुजरात सरकार, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी और गुजरात सरकार की ओर से भी जो लोग हताहत हुए हैं इनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। 10 ही मिनटों में हादसे के भारत सरकार के पास सूचना पहुंची। तुरंत ही मैंने मुख्यमंत्री जी, यहाँ के गृह मंत्री, होम डिपार्टमेंट के कंट्रोल रूम, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, सिविल एविएशन मंत्री, सभी से संपर्क किया। प्रधानमंत्री जी का भी तुरंत ही फोन आ गया और भारत सरकार और गुजरात सरकार के सभी डिपार्टमेंट एक साथ होकर राहत और बचाव कार्य में लगे। इस विमान में कुल मिलाकर 230 यात्री देश के और विदेश के और 12 क्रू मेंबर सवार थे। इसमें से एक यात्री का बचने का अच्छा समाचार मिला है, मैं उनको मिलकर आया हूं। मृत्यु का आंकड़ा तो DNA परीक्षण और यात्रियों की पहचान के बाद ही अथॉरिटी अधिकृत रूप से घोषित करेगी, मगर जो यात्री बचा है उसको मैं मिलकर आया हूं। घटना के तुरंत बाद गुजरात सरकार ने बहुत त्वरा से डिजास्टर मैनेजमेंट की सारी इकाइयों को अलर्ट करते हुए, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे फायर ब्रिगेड हो, चाहे पुलिस विभाग हो, भारत सरकार की भी
सीएपीएफ को संपर्क कर कर सभी ने एक साथ मिलकर राहत और बचाव का कार्य चालू किया, मगर 1.25 लाख लीटर ईंधन विमान के अंदर ही था और लगभग गर्मी तापमान इतना ऊंचा हो गया कि किसी को बचाने की मौका ही नहीं मिला। अब मैं घटना स्थान पर भी जाकर आया हूं। सारे यात्रियों के मृतदेह को बाहर निकालने का काम लगभग समाप्त हो चुका है। जितने यात्रियों के परिजन यहां पहुंच चुके हैं वो सबका डीएनए लेने की कार्यवाही भी 2-3 घंटों में समाप्त हो जाएगी। विदेश में जिनके परिजन हैं उनको सूचना देने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है और जैसे ही पहुंचते हैं उनके भी डीएनए सैंपल लिए जाएंगे और मृतदेहों की पहचान के लिए जितने मृतदेह मिले हैं इनके भी डीएनए सैंपल लेने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है। गुजरात में ही लगभग 1000 के आसपास डीएनए टेस्ट करने पड़ेंगे। ये सभी टेस्ट करने की क्षमता गुजरात में विकसित है, तो डीएनए टेस्टिंग के लिए कहीं गुजरात के बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुजरात की एफएसएल और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी दोनों मिलकर कम से कम समय में डीएनए का परीक्षण पूरा करने के बाद परिवारजनों को अपना मृतदेह परिजन का मृतदेह सौंपने का काम करेंगे। उनके रहने की सुविधा, उनकी सांत्वना की सुविधा, जिनको मेडिकल प्रॉब्लम ट्रॉमा के कारण हुई है इनकी मेडिकल की सुविधा, ये सारी व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से हो चुकी है। अभी रिव्यू मीटिंग में सारी व्यवस्थाओं को हम सब मंत्रियों ने साथ में मिलकर देखा है। एविएशन डिपार्टमेंट ने अपनी जांच शुरू कर दी है और जांच तेजी से आगे बढ़े इसके लिए भी एविएशन मंत्री जी ने सूचनाएं दी है। मैं फिर से एक बार राहत काम में जिन जिन एजेंसियों ने त्वरा के साथ बचाव और राहत का काम किया वो सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। दर्दनाक हादसा और उसमें क्या हुआ होगा ये तो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, आकार्स के डेटा से पता चलेगा। लेकिन जो विजुअल्स आ रहे हैं उससे एक चीज़ साफ नज़र आता है कि एयरक्राफ्ट जो है वो फ्लाई कर रहा था और फ्लाई करते हुए ग्राउंड पे गया है। दैट मीन्स के एयर में कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ था। सबसे पहले तो ये। दूसरी चीज़ जो बहुत क्लियर है वो ये कि वेदर ऐसा हार्श वेदर नहीं था जो कि कंट्रीब्यूटरी फैक्टर हो सकता है। तीसरी चीज़ कि इस पूरे विजुअल्स से लगता है कि एयरक्राफ्ट को लॉस ऑफ पावर है। वो लॉस ऑफ पावर एक इंजन में है या दोनों इंजन में है ये कहना बहुत डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन जो भी पावर था दैट वाज नॉट सफिशिएंट टू कीप द एयरक्राफ्ट फ्लाइंग। उसको तो ये जो लॉस ऑफ पावर है अगर हम इसको दो भाग में डिवाइड करें तो एक तो है टेक्निकल के इंजन के मैल फंक्शन। बहुत रेयर है कि दोनों इंजन का लॉस ऑफ पावर साइमल्टेनियसली हो। दूसरा है जैसा कि वो हडसन रिवर वाले में हुआ था, लॉस ऑफ पावर ऑन बोथ इंजन्स हुआ था, बट दैट वाज ड्यू टू बर्ड स्ट्राइक के वजह से हुआ था। दोनों इंजन लॉस हो गए थे। ये इंजन एयरबस 320 से बहुत बड़ा है और बर्ड हिट से भी दोनों इंजन का स्ट्रेट अवे एक साथ ख़त्म होना इन 1 मिनट ड्यूरेशन इज़ वेरी रेयर। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू से कि टेक्निकल फॉल्ट ऐसा क्या हो सकता है जो कि दोनों इंजन के पावर को लॉस करेगा। क्या इतने बड़े बर्ड एक्टिविटी वहाँ पर थे? वैसे अहमदाबाद एयरपोर्ट में बर्ड्स बहुत हैं, लेकिन क्या वो इतने ज़्यादा थे कि एयरबस बोइंग 787 जैसे जहाज़ के दोनों इंजन को एक साथ ख़त्म कर सकता है? क्वाइट अनलाइकली, बट दैट इज़ वन ऑफ द पॉसिबिलिटी।
अभी खबर ये है कि पायलट ने मेडे कॉल दिया था। इसका मतलब ये है कि जो भी फेलियर था वो पायलट के कॉकपिट में दिखा था। अगर वो दिखा था दैट मीन्स कि वो टेक्निकली उसमें वो फॉल्ट नज़र आया और उसको ये लोग कॉम्बैट करते हुए एयरबॉर्न हुए। जो चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही है कि उनका लैंडिंग गियर क्यों डाउन था और क्या फ्लैप्स के पोजीशन वही थे जिस पे कि परफॉर्मेंस कैलकुलेट किया गया था। फ्लैप्स एक विंग्स के पीछे में एक डिवाइस होता है जो कि लिफ्ट को बढ़ाता है। तो जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है तो उसका फ्लैप्स टेक ऑफ पे होता है, लैंडिंग गियर डाउन होता है। जैसे ही एयरबॉर्न होता है तो लैंडिंग गियर को अप किया जाता है। वो 30 से 50 फीट के ऊपर में लैंडिंग गियर को अप करने की कार्यवाही 50 फीट से ऊपर से शुरू हो जाती है। और इस केस में लैंडिंग गियर डाउन है। पॉसिबिलिटी के एयरक्राफ्ट का इंजन पावर लॉस वाज डिटेक्टेड बिफोर हैंड। अब टेक्निकल फॉल्ट के साथ अगर कोई मिक्सअप ऑफ पायलट एक्शन हुआ है कॉकपिट में तो वो CVR और FDR ही बताएगा। लेकिन विजिबली जो नज़र आ रहा है, पायलट इन कमांड जो कंट्रोल पे थे वो एयरक्राफ्ट के नोज को पिच कर रहा है ऊपर की तरफ टू कंट्रोल द फ्लाइट फ्रॉम डिसेंडिंग और कंटिन्यू क्लाइंबिंग। ये दोनों ही चीज़ नहीं हो पा रहा था। इसकी वजह तो ये है कि सफिशिएंट पावर नहीं था या उस फ्लाइट कन्फिग्रेशन के लिए सफिशिएंट एयर स्पीड नहीं था। एयर स्पीड का मतलब कि अगर जहाज़ अगर बहुत स्लो है और फ्लैप्स अगर अप है तो अगेन एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं कर पाएगा। और दूसरा ये है कि सभी चीज़ सही है और पावर नहीं है, अगेन एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं कर पाएगा। तो इन सारे चीज़ इतने वेरिएबल्स हैं कि किसी भी तरह का स्पेकुलेशन विल बी वो अनजस्ट होगा फॉर दी पायलट्स ऑन बोर्ड। अब कैसी स्थिति रही होगी पायलट्स के नज़रिए से कि जहाज़ जो है वो पायलट उसको उड़ाने की कोशिश कर रहा है और जहाज़ नीचे की तरफ गिरा चला जा रहा है और पायलट को ये पता नहीं चल रहा है ये हो क्यों रहा है, या इंजन्स पावर नहीं डेवलप कर रहे हैं। इट इज़ अ वेरी बहुत ही डिफ़िकल्ट सिनेरियो है इस चीज़ को गेस करना, ठीक है। लेकिन FDR विल से बहुत बड़ा सवाल है कि लैंडिंग गियर ऊपर क्यों नहीं था, क्योंकि ख़बर यह है कि जहाज़ 600 फीट तक ऊपर गया था, तो 600 फीट तक उसके लैंडिंग गियर ऊपर होने चाहिए थे और क्या फ्लैप्स अपनी जगह पे था। ये सब दीज आर जो चीज़ है वो इन्वेस्टिगेशन की चीज़ है और किसी को भी स्पेकुलेट करने का हक नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि वेदर, हॉट टेम्परेचर, रनवे, ये सारा चीज़ परफॉर्मेंस एयरक्राफ्ट के इंजन पावर और कन्फिग्रेशन पे डिपेंड करता है। इंजन पावर टेक्निकली ख़राब हो सकता है, इंजन पावर बर्ड हिट की वजह से भी जा सकता है और एयरक्राफ्ट का कन्फिग्रेशन पायलट के हाथ में होता है। क्या एक प्रॉब्लम था या मल्टीपल प्रॉब्लम था, अभी कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। फ्लाइट ड्यूरेशन के हिसाब से फ्यूल कैलकुलेट करके फ्यूल ऑन बोर्ड लिया जाता है और फ्यूल इतने 8-9 घंटे की फ़्लाइट के लिए 80-90 टन फ्यूल जो लिया जाएगा उसके ये जहाज़ उसके लिए फुल्ली कैपेबल है। सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट पे भी टेक ऑफ करने के लिए कैपेबल है। यहाँ पे मल्टीपल प्रॉब्लम्स हुए होंगे। सिर्फ एक इंजन के फेल होने से 787 या 737 या एयरबस 320 या कोई भी पैसेंजर एयरक्राफ्ट क्रैश नहीं करता है। सो इट इज़ ये फ्यूल ऑब्वियसली जाहिर है इतना डिस्टेंस है तो फ्यूल ज़्यादा लिया गया होगा और फ्यूल ज़्यादा नहीं रिक्वायर्ड होता है ज़्यादा, तो उसी के हिसाब से लिया गया है। ग्राउंड से कोई असिस्टेंस नहीं मिल सकता था एक्सेप्ट कि ग्राउंड फोरवार्न कर सकता था। अगर जो बर्ड हिट का केस है, ये ग्राउंड्स में ऑब्जर्वर्स होते हैं, वो बोलते हैं कि आप अभी टेक ऑफ नहीं करें, अभी बर्ड्स हैं टेक ऑफ पाथ पे। अगर उसके अलावा ग्राउंड कोई असिस्टेंस नहीं दे सकता था, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। दूसरी चीज़, पायलट से चूक हुई थी या नहीं हुई थी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से एंड इट विल बी रॉन्ग टू से एट दिस टाइम। नंबर 3, पावर फेलियर था या एयरक्राफ्ट कन्फिग्रेशन मिसमैच था, वेरी डिफिकल्ट टू से। FDR बोल सकता है। डेफिनेटली वेदर कंट्रीब्यूटरी फैक्टर नहीं था। हाँ, हॉट टेम्परेचर होने के वजह से परफॉर्मेंस थोड़ा
डिग्रेड होता है, बट दे ऑल केटर फॉर इट. इट इज़ नॉट, ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसके वजह से एक्सीडेंट हो जाता है. तो ना फ्यूल, ना एयरक्राफ्ट, ना टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग इज़ गुड. ये वेदर भी सही था. तो काफ़ी बैफलिंग है कि लॉस ऑफ पावर था एंड एयरक्राफ्ट, वाई एयरक्राफ्ट वॉज नॉट एबल टू मेंटेन अ क्लाइंबिंग पाथ. मेरे याद से इससे बड़ी दुर्घटना ऑन टेक ऑफ लेग और कोई दूसरा तो है नहीं. और एयरबस, ये बोइंग 787 के लिए भी ये सबसे बड़ी दुर्घटना है. और ऑब्वियसली ये टेक ऑफ के बाद हुआ है, तो ज़मीन पर भी बहुत सारे लोगों का जान माल गया है. तो मेरे हिसाब से इससे दुखद और इससे बड़ी घटना लास्ट डिकेड में तो नज़र नहीं आती है. इन्वेस्टिगेशन सारे एंगल्स को देखेगा, लेकिन जो विजुअल्स आप हमें दिखा रहे हैं उसमें किसी भी तरह का इस तरह का बैटरी एक्सप्लोजन वगैरह कोई चीज़ नज़र नहीं आता है. और उससे एयरक्राफ्ट के पावर लॉस से कोई सरोकार नहीं है. एक तो ये टेक्नोलॉजिकली एयरक्राफ्ट बहुत प्रोवन है, पायलट्स ट्रेंड हैं, लेकिन उसके बावजूद पार्ट ऑफ द गेम है कि इस पर्टिकुलर एविएशन में कुछ चीज़ें होती हैं जो कि ह्यूमैनिटी पहली बार देखता है और फिर उसके बचाव में चीज़ें की जाती हैं. लेकिन यहाँ पे ये है कि पायलट ने मेडे कॉल दिया था पहले, और उसके बाद फ्लाइट जो है कंटिन्यू टू डिटोरिएट. क्या मेडे कॉल करने के बाद देयर हैव बीन फ्यू मोर मिस्टेक्स, बिकॉज इट इज़ लाइकलीहुड व्हेन एज अ पायलट सीटेड इन द कॉकपिट आप देख रहे हैं कि एयरक्राफ्ट जो है वो फ्लाइबल नहीं है, तो क्या आप वही एक्शन करते हैं जो कि उस वक्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कमेंट कि क्या सही है और क्या गलत उस वक्त हुआ था, अनलेस आपके पास DFDR, CVR, ACARS के रिपोर्ट नहीं है. Hearts go out to the families of the victims who lost loved ones on that flight. At DOT and at the FAA, safety always comes first. And in this investigation, we are going to follow the facts. As the acting administrator will discuss, we're in the process of deploying a team from the FAA, from the NTSB. We also have GE and Boeing that are deploying their resources and investigators to India. I'll just note that India leads the investigation. We're there to provide any assistance that India may need as they go through which appears to be a somewhat lengthy investigation on this crash.